See classifications, that is monohydric alcohols, dihydric and polyhydrics. If one, two or more than two hydroxyl functional group is attached to the hydrocarbons. Similarly, monohydric is further classified into three classes: primary, secondary and tertiary, on the basis of their degree, right? And next, that is allylic alcohol. So when allylic group is present in the functional group OH, so what is allylic? When hydroxyl functional group is joined to the carbon atom which is next to carbon carbon double bonds, right? And the carbon which is bonded with the hydroxyl functional group must have sp3 hybridized state called allylic alcohols. Next one is primary allylic, secondary allylic and tertiary allylic, that is the classifications of further allylic into three classes on the basis of their degree. And then benzylic. So benzylic alcohols, that means when hydroxyl functional group is present in the carbon atom next to aromatic system or aromatic ring, it is further classified into two classes: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. सो थ्री टाइप्स का ये भी हो जाएगा. नेक्स्ट विनाइलिक अल्कोहल. सो विनाइलिक अल्कोहल, दैट मीन्स when vinylic group is present in the alcohols, that means when hydroxyl functional group is linked to the carbon atom which is sp2 hybridized and carbon carbon double bonds. तो यहाँ दो एग्जाम्पल्स हम दिए हैं विनाइलिक का, एक साइक्लिक में है एंड सेकेंड टू कार्बन्स का सिंपली विनाइलिक ग्रुप में हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, राइट. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द नेमिंग ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. So alcohol, that you know, common name is alkyl alcohol and the UPAC name is alkanol, where alk is the number of carbon atom. It is also called word root. So you can see here the word root or number of carbon atom is alk. So this is most important part of the naming. पहले word root निकालना है. word root यदि गलत हो गया तो naming पूरा गलत हो जाएगा. तो word root को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेंटल हाइड्रोकार्बन चेन. देन एन, दैट इज प्राइमरी और यूनिवर्सल सफिक्स एंड ऑल, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप. तो यहाँ हम लोग प्राइमरी सफिक्स भी देख सकते हैं और सेकेंडरी सफिक्स भी देख सकते हैं. सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप ही होता है, राइट. तो इसके नीचे से हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ये क्लास 11 पढ़ा रहे थे, तो उसको लिख दिए. उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं, ये क्लास 11 का है, इसको हम ओवर कर देते हैं. तो इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे. सो फ्रॉम हियर आई विल स्टार्ट फॉर क्लास 12. तो यहाँ 11 का एंडिंग में एक लाइन दे देते हैं. So now moving toward the NCERT PDF. And the common name of phenol, that is phenol. It is common as well as UPAC name because benzenol is not famous. So phenol, phen is the old name of benzene, right? So benzenol is replaced by phenol. और यूपेक ने भी इसका मान्यता दिया हुआ है. तो वेट, यह सिस्टम थोड़ा स्लो काम कर रहा है क्योंकि
कंटिन्यूअस क्लास ही चल रहा है, कभी कभी इसमें ऐसा होता है सिस्टम में। Wait, I will refresh it for better response. Now it works better. See, these are the classifications we have completed. बेंजाइलिक एंड ईथर्स। ईथर्स का भी हम लोग कर चुके थे, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल्स। नाउ सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर गिवन हियर regarding the classifications. So classify the following primary, secondary and tertiary alcohols. तो कौन सा primary, secondary, tertiary होगा? So it is clear that first one is primary because the carbon which is bonded with the hydroxyl functional group having sp3 hybridized and contains only one alkyl groups in the right hand sides and rest two is satisfied with the hydrogen. Clear? The second one is also 1 degree, third one is also 1 degree, fourth one is 2 degree because only one hydrogen atom present in the carbon which is bonded with hydroxyl functional group. Fifth one is 2 degree and the sixth one is 3 degree alcohol because it is surrounded with the 4 different alkyls or aryl groups. Clear? Then identify allylic alcohols in the above example. तो allylic बताना है, कौन सा allylic होगा? So we will tell me the answer. If anybody can tell, raise the hands. allylic alcohol कौन सा होगा? Anyone? allylic alcohol कौन सा होगा? फर्स्ट वन इज सिंपल अल्कोहल, सेकंड वन इज एलाइलिक, दूसरा वाला ही एलाइलिक है, ठीक है। और विनाइलिक कौन सा है? तो विनाइलिक यहाँ कोई भी एग्जांपल्स में नहीं दिया है क्योंकि सारा में sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, तो 2 ही एलाइलिक होगा। सो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग यहाँ से देखते हैं द कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल डेराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स एडिंग विद द वर्ड्स अल्कोहल. सो फॉर एग्जांपल CH3 it is methyl alcohol, C2H5 ethyl alcohol. UPAC name alkanol, alk is the word root, N is the primary suffix and all is the secondary suffix. तो यहाँ से कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं. फर्स्ट टेबल NCERT का 11.1. सो मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल, तो कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल है, अल्काइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बना. यूपीएक नेम अल्केनॉल, तो मिथेनॉल. सेकेंड दैट इज 3 कार्बन्स आर इन स्ट्रेट लाइन, सो प्रोपेन का अल्कोहल हो जाएगा. सो इन कॉमन नेम एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन फॉर नॉर्मल, यदि कोई ब्रांचेस नहीं रहता उसमें लोग नॉर्मल बोलते हैं. सो इट इज नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल कॉमन सिस्टम. यूपीएक सिस्टम में प्रोपेन 1 ऑल और 1 नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट प्रोपेनॉल लिखेंगे तो भी ये सही होगा, राइट. द थर्ड वन इज 3 कार्बन कनेक्टेड विद द अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप इन द सेकेंड पोजिशन, सो इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन कॉमन, क्योंकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स यहाँ लगा हुआ है. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन यूपीएक सिस्टम प्रोपेन 2 ऑल और 2 प्रोपेनॉल, राइट. तो इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं किसी का भी. तो यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया है. अब लास्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स है, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, राइट.
और कॉमन में इसका नाम ग्लाइसेरॉल होता है. सो इट इज़ ग्लाइसेरॉल, दैट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन सोप इंडस्ट्री. सोप इंडस्ट्री में वेस्ट प्रोडक्ट्स में इसको निकाला जाता है. साइक्लिक अल्कोहल्स आर नेम्ड यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो एंड कंसिडरिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू कार्बन नंबर 1. तो जहाँ अटैच रहता है उसको हम लोग 1 काउंटिंग करते हैं. तो फर्स्ट वन इज साइक्लोहेक्सेनॉल एंड सेकेंड इज 1 को हम लोग अल्कोहल लेंगे तो 2 पर मिथाइल हो जाएगा. सो इट इज 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल बिकॉज 5 मेंबर्ड रिंग है. सो इट इज साइक्लोपेंटेनॉल, राइट. Now see the classifications, the UPAC naming of phenol and its derivatives. So see the first one is the phenol. CH3 के जगह पर यहाँ C6H5 और बेंजीन रिंग लगा हुआ है, right? So it is called phenol, common name as well as UPAC name. See the methyl derivatives of phenol. Just besides of hydroxyl methyl group is linked here. So it is called इन कॉमन सिस्टम क्रिसॉल. यदि एक मिथाइल रहेगा फिनॉल में कहीं भी रहे तो इसको ग्रिसॉल बोलते हैं. अब ग्रिसॉल का पोजीशन अलग अलग हो सकता है, ऑर्थो मेटा पैरा. सो सी ऑर्थो ग्रिसॉल सेकेंड एग्जांपल्स, थर्ड मेटा ग्रिसॉल एंड फोर्थ इज पैरा ग्रिसॉल. तो ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पोजीशन से ये कॉमन सिस्टम में यूज किया जाता है, राइट. सो कॉमन सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन, बट इन यूपेक सिस्टम इट इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो यूपेक सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल सेकेंड वाला का, थर्ड का 3 मिथाइल एंड 4 का 4 मिथाइल फिनॉल, राइट. तो दीज आर द फिनॉल मिथाइल डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल. तो यदि हम लोग डायहाइड्रिक का देखें, फिनॉल में डायहाइड्रिक, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायहाइड्रिक फिनॉल्स. सो hydroxy derivatives of benzene are known as 1 2 1 3 and 1 4 benzene diol. So it is benzene 1 2 diol, 1 3 diol, 1 4 diols in the UPAC name, but common name see benzene 1 2 diol has catechol. तो catechol नेम है, ठीक है. प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक यहाँ नहीं करना है. बहुत सारा कैटीचॉल पढ़ता है, कैटीचॉल नहीं कैटेकॉल पढ़ा जाता है, राइट. सो कैटीचॉल नहीं पढ़ना है, कैटेकॉल इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ बेंजीन 1 2 डायोल कॉमन नेम. सिमिलरली द सेकेंड इज रेसोर्सिनॉल. बेंजीन 1 3 डायोल इज कॉल्ड रेसोर्सिनॉल एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोक्सीक्विनोन और क्विनॉल भी बोलते हैं. तो यहाँ क्विनोन कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है. हाइड्रोक्सी क्विनोन मतलब क्विनोन क्या होता है, अल्केनोन कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है बिकॉज इट फाइनली स्टेबलाइजेज इनटू कीटोन्स. ये नेस्टेबल होता है और कीटोन में स्टेबलाइज करता है, दैट्स व्हाई इट इज हाइड्रोक्विनोन. और इसको हम लोग क्विनॉल भी बोलते हैं और बेंजीन 1 4 डायोल भी बोलते हैं. तो ये कुछ नेमिंग हुआ, ठीक है. अब यहाँ फिर से एक टेबल दिया हुआ है कॉमन नेम यूपेक नेम के लिए. तो इसमें सारा ग्रुप दिया हुआ है. इथर्स आर ऑल्सो गिवन. तो इथर्स का नाम भी दिया हुआ है. देखो इथर का नाम क्या होता है, अल्कोक्सी अल्केन. बहुत सिंपल है. कॉमन नेम डायल्काइल ईथर. तो इथर्स कॉमन नेम derived from the name alkyl or aryl groups written separate word in alphabetical order and adding the word ether in the end. For examples ethyl methyl ether. ठीक है, ये कॉमन सिस्टम है. तो सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब यहाँ ईथर्स का ही सारा दिया हुआ है, टोटल ईथर्स का है. तो फर्स्ट क्या है, कॉमन नेम डाईमिथाइल ईथर and in UPAC system it is called alkoxy alkane, तो मिथॉक्सी मीथेन. सेकेंड का UPAC नेम हो जाएगा अल्कोक्सी की जगह पर इथॉक्सी, तो इथॉक्सी इथेन एंड कॉमन नेम डाइथाइल ईथर. सो फर्स्ट एंड सेकेंड इज सिमेट्रिकल बट थर्ड इज अनसिमेट्रिकल बिकॉज बोथ इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट. तो नाम हम लोग कैसे करेंगे कॉमन में, तो डाई नहीं लगेगा यहाँ अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको लिखेंगे. तो पहले MRI मिथाइल, तब MNO P, तब P आता है. M की बात काफ़ी दूर में P है.
तो पहले मिथाइल लिया गया है, फिर प्रोपाइल लिया गया है, देन ईथर, राइट। सो द नेम कॉमन सिस्टम ऑफ द थर्ड वन इज मिथाइल एन प्रोपाइल, या एन नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर भी लिख सकते हैं। बट द यूपेक नेम इज एज पर द रूल्स ऑफ यूपेक गाइडलाइंस। यूपेक गाइडलाइंस का रूल्स क्या है, पोजीशंस के साथ प्रीफिक्स लिखना है। तो प्रीफिक्स यहाँ क्या है, अल्कोक्सी, तो अल्कोक्सी की जगह पर जो छोटा होता है उसको अल्कोक्सी लेते हैं। सो मिथॉक्सी विल बी द प्रीफिक्स। सो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन विल बी द यूपेक नेम ऑफ थर्ड वन। क्लियर। सी द फोर्थ वन C6H5, दैट मीन्स बेंजीन रिंग वहाँ कनेक्टेड है ईथर में, सो इट इज कॉल्ड बेंजीन। और बेंजीन ग्रुप में लगा हुआ है एक ऑक्सी और एक मिथाइल, राइट। सो द नेम विल बी इन कॉमन सिस्टम मिथाइल फिनाइल ईथर, क्योंकि एम पहले आ रहा है तो पहले मिथाइल आ जाएगा। ये नहीं कि फिनाइल 6 कार्बन है तो पहले हम लोग लिख देंगे। कॉमन नेम में भी अल्फाबेटिक रूल्स यहाँ फॉलो करना है। मिथाइल फिनाइल ईथर is the correct name in common system, right? But see the UPEC system, if you will write the name in UPEC system then it is methoxybenzene. Clear? तो methoxybenzene हम लोग यहाँ देख सकते हैं, उसको हम लोग एनिसोल्स बोलते हैं कॉमन में। So methoxybenzene is UPEC name, और also anisole is so popular that it is common name as well as UPEC name. तो एनिसोल्स पुराने ज़माने में से ही चलते आ रहा था, अभी भी इसको यूपेक रिकॉग्नाइज कर दिया है। यूपेक के अकॉर्डिंग ये कॉमन नेम भी है, यूपेक नेम भी है। तो हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं एनिसोल्स इन प्लेस ऑफ मिथॉक्सीबेंजीन। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इथाइल फिनाइल ईथर, दैट इज फिनेटॉल, इसको हम लोग फिनेटॉल बोलते हैं इन कॉमन सिस्टम, बट इट इज़ नॉट द यूपेक नेम। फिनेटॉल इज ओनली इन द कॉमन नेम। कॉमन नेम में पॉपुलर है फिनेटॉल, इथाइल फिनाइल ईथर्स को, but the UPEC name is ethoxybenzene, methoxybenzene anisole and ethoxybenzene phenitol, but phenitol is not common, not UPEC, it is only common name, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हेप्टाइल फिनाइल ईथर इसी तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग सेकेंड लास्ट वाले को देखते हैं। सेकेंड लास्ट वाला थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि दो अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड्स दोनों साइड्स में ही मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। सो इसका कॉमन नेम इसका नहीं हो सकता है, इसका डायरेक्ट हम लोग यूपेक नेम लिखेंगे, ठीक है। तो यूपेक नेम में क्या हो जा रहा है, 1,2 डाई मिथॉक्सी, और इथेन, इथेन कहाँ से आया है, तो बीच वाला जो है उसको हम लोग इथेन बोल रहे हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वही है कंटिन्यूस में। सो दिस इज द वर्ड रूट इथेन, एंड 1,2 डाई मिथॉक्सी इज द प्रीफिक्सेस, राइट। सी द लास्ट वन, तो एक एरोमेटिक रिंग लग रहा है लेकिन एरोमेटिक है नहीं, क्योंकि वो साइक्लोहेक्सेन है। क्लियर। अब साइक्लोहेक्सेन में क्या लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल्स और एक इथॉक्सी। प्रियोरिटी हम लोग किसको लेंगे, तो इथॉक्सी और मिथाइल्स का लगभग प्रियोरिटी अल्कोक्सी और अल्काइल का सेम होता है। तो ये रूल्स हम लोग अब यहाँ नहीं लगा करके ये रूल्स लगाएंगे कि लोवेस्ट सम रूल्स किस में लगता है। तो लोवेस्ट सम रूल्स पहले दो मिथाइल्स है तो उसको 1,1 ले लेंगे। तो लोवेस्ट सम रूल्स के अकॉर्डिंग 1,1 यदि आ रहा है एक ही पर तो वो लोवेस्ट होता है, राइट। सो इट इज अल्फाबेटिकली लिखना है। सो 2 इथॉक्सी इज रिटन फर्स्ट, बिकॉज अल्फाबेटिकली ई आएगा तब एम आएगा, तो डी को हम लोग नहीं लेते हैं, एम को लेते हैं, ई को लेते हैं, मतलब वर्ड रूट को लेते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में। सो इट इज 2 इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग यूपेक और कॉमन नेमिंग अल्कोहल्स फिनॉल एंड ईथर का किए। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है और सॉल्यूशंस भी है, बट बिना सॉल्यूशंस देखे हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। गिव द यूपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पहला का क्या होगा, तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग लेफ्ट से नहीं होगा, राइट से होगा, क्योंकि राइट में फर्स्ट पोजीशन पर अल्कोहल मिल रहा है। क्लियर। सो 1 2 3 4 5 का लॉन्गेस्ट चेन है, और सेकेंड थर्ड में मिथाइल है, और फोर्थ में क्लोरो है। तो क्या हो जाएगा 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल 1 2 3 4 5 है, तो पेंटेन 1 ऑल या पेंटेनॉल। तो ये नाम दिया होना चाहिए। क्या दिया हुआ है, 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। तो ये सब हो जाएगा। 11 में भी नेमिंग था, इसको होमवर्क में ये सब करना है।
फिर यहाँ कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, इसको भी करना है। इंटेक्स्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट हम लोग यदि करें तो नाम क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन पहले फाइंड करना है, जो थोड़ा यहाँ डिफिकल्ट है। तो 1 2 3 4 इधर से तो नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6। तो 6 यदि आ रहा है तो ओ एच छूट जा रहा है, इसलिए 6 तो गलत हो जाएगा, 5 मैक्सिमम जा रहा है। लेकिन क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप भी है, उसको भी लेना है। तो 1 2 3 4 4 आ रहा है यदि क्लोरीन ले रहे हैं तो। So what will be the correct name? 1 पर तो अल्कोहल होगा, ये श्योर है। सो 1 2 3 तो 5 चेन हम लोग इसे लेकर के चलें तो ये बन जाएगा। फ्रॉम टॉप टू लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो 5 कार्बन का चेन आ रहा है, और 2 पर क्लोरोमिथाइल्स आ रहा है, सॉरी 3 पर क्लोरोमिथाइल्स आ रहा है, 2 पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स आ रहा है। तो यूपेक नेमिंग क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल मेथिओप्रोब्यूटेन पेंटेन 1 ऑल या पेंटेनॉल, ये हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड का देखेंगे तो इसी तरह से सेकेंड में तो क्लियर है नेमिंग। स्टार्टिंग 1 कहाँ से होगा, तो टॉप साइड में जो ओ एच लगा हुआ है उस कार्बन को 1 लेंगे, फिर सेकेंड 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन यहाँ डाइऑल होगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 3 पर डाइऑल है और एक मिथाइल भी है 5 पर, तो इस तरह से नेम होगा इसका 1 2 3 4 5 6। तो हो जाएगा 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1 3 डाइऑल, ऐसा इसका नेमिंग होगा। ठीक है, तो ये सब घर में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि नेमिंग से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में भी आता ही है। तो इस बार तो हाफ टर्म करके रहेगा तो ज़्यादा मार्क्स का आएगा नेमिंग। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो स्ट्रक्चर्स फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, तो मिथेनॉल, फिनॉल और ईथर तीनों ही वाटर का जस्ट सिमिलर है, क्योंकि वाटर का जस्ट डेरिवेटिव्स होता है। हाइब्रिडाइजेशंस भी वाटर का sp3 है, यहाँ भी सबका sp3 हाइब्रिडाइजेशंस है। सो ऑल हैव द शेप दैट इज कॉल्ड बेंट शेप। हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड शेप इज बेंट। तो याद रखना है बेंट शेप का अल्कोहल भी होगा, फिनॉल भी होगा, ईथर भी होगा। यदि शेप पूछा जाए तो बेंट होगा, राइट। तो यहाँ स्ट्रक्चर्स कुछ करके दिखाया है। दिस इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन OH एंड OC इन द मिथेनॉल 108.9 डिग्री, फिनॉल में ये 109 डिग्री हो जाता है, और ईथर में ये बॉन्ड एंगल बढ़ करके 111.7 डिग्री हो जाता है, बिकॉज 2 अल्काइल ग्रुप्स है, तो बल्कि ग्रुप से एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करता है, तो बॉन्ड एंगल्स थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। So see this animation, it is based on the NCERT textbook, completely NCERT based है, और 3D एनिमेटेड भी है, डायग्राम के साथ वॉइस भी है। सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है, तो लेट से ये ओपन हो रहा है, आ जाएगा।
plus the word alcohol. For example, the alcohol with the formula CH3OH shown on the left is commonly called methyl alcohol. It contains only one carbon, which corresponds to a methyl group. The molecule on the right has a 4-carbon chain in a straight line. This corresponds to N-butyl alcohol, where the N indicates an unbranched carbon chain. In IUPAC nomenclature, the alcohol name is derived from the alkane name of the longest continuous carbon chain. Drop the E from the alkane name and replace with the suffix OL to determine the alcohol name. The location of the hydroxyl group and additional substituents are indicated by using the numbers of the carbon atoms to which these are attached. Let's look at the same molecules we used a little while ago to learn about common names. In the IUPAC system, methyl alcohol with the formula CH3OH is called methanol. N-butyl alcohol is called butan-1-ol. तो इस तरह से हम लोग कॉमन नेम में यूपीएक नेम कर सकते हैं. ब्यूटेनॉल है और ब्यूटेन. Give the IUPAC names of these structures. Try to find the names on your own before checking the answer. So this is the bond line structures. ये क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से इसका हम लोग नेमिंग करना है. तो कैसे नेमिंग करेंगे? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे और उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो टोटल का कार्बन चेन कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5. तो पेंटेनॉल है लेकिन मिथाइल लगा हुआ है 3 पर. सो इट इज 3 मिथाइल पेंटेनॉल. ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 5 मेंबर्ड हो गया तो पेंटेन 1 2 3 4 5. बट इन 3 पोजिशंस देर इज अ ब्रांच दैट इज मिथाइल. सो द नेम विल बी 3 methyl pentane 2-ol because the positions of hydroxyl group in the second, right? So see the name. It is 3 position then 2 3 methyl 2 pentanol और pentane 2-ol भी लिख सकते हैं, right? See the question number B that contains 1 2 3 4 5 6 and 7 8 carbonyl state chain and 3 contains functional group in the position number 3 that is hydroxyl group and position number 4 contains ethyl group because 2 carbons are present there, so it is ethyl groups in bond line notations. So the name will be 4 ethyl 3 octanol और octane 3-ol भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट? तो इस तरह से कुछ यहाँ नेमिंग होगा. बॉन्ड लाइन का भी नेमिंग कर सकते हैं, कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. So these are the polyhydric alcohols. 2 hydroxyl functional groups are present there. So we will use to write diol. ठीक है, प्रोपेन है और प्रोपेन में 2 ऑल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 डाइऑल, राइट? एंड दिस इज ब्यूटेन ट्राइऑल, ब्यूटेन 1 2 3 ट्राइऑल. इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं. तो बहुत ईजी है नेमिंग करना. यदि क्लास 11 का रूल्स पता हुआ है, लॉन्गेस्ट चेन रूल, लोएस्ट सम रूल, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रूल्स, नंबरिंग रूल, अल्फ़ाबेटिक रूल्स, तो कोई इशू नहीं होगा. क्लास 12 में नेमिंग पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शन से स्टार्ट करो, राइट? बट इट इज़ गिवन इन द सिलेबस, दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग हियर. ओके, so see the name of 5 carbon having 2 functional group in the second and third. So it is pentane 2 3 diol और 2 3 pentane diol. दोनों ही नेम सही है, कोई इशू नहीं होगा उससे. ओके, सो राइट द यूपीएक नेम ऑफ दीज अल्कोहल्स. तो ये सब का नेमिंग करना है तो इजीली हम लोग कर सकते हैं. तो ये सब अभी हम लोग कर चुके हैं. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिनॉल्स पर चलते हैं, राइट? सो ये अल्कोहल का
रहेंगे, नेमिंग यहाँ फिनॉल में चलते हैं. सो सी द नेम ऑफ द फिनॉल. To name benzene derivatives. Ortho refers to one. When's the last time you see it? Wait, it is at a few seconds. Disubstituted benzenes. Similarly, 2-methylphenol, shown on the left, can also be named as orthocresol. Meta is used to refer to 1,3-disubstituted benzenes. So see the ortho So, meta and para. 3-methylphenol, shown in the center, is also called metacresol. Finally, the prefix para is used for 1,4-disubstituted benzenes. Therefore, 1,4-methylphenol shown on the right is also called paracresol. In IUPAC nomenclature, dihydroxybenzene derivatives are named as diols. Numbers give the locations of the hydroxyl groups. Shown here are 3 examples from left to right. They are benzene 1,2-diol, benzene 1,3-diol, and benzene. So as per the positions, benzene 1,2-diol, 1,3-diol, and 1,4-diols given in the UPAC name. But see the common name that is different from the UPAC name here, right? So first one will be the Catechol or pyrocatechol. Catechol or pyrocatechol. Benzene 1,3-diol is commonly referred to as resorcinol. Hydroquinone or just quinol is the common name for benzene 1,4-diol. Let's do some more practice problems. Give the IUPAC names of the compounds shown here. Remember, the location of the hydroxyl group is carbon number 1. So, molecule A can be named 2,6-dimethylphenol. Its common name is 2,6-xylenol. Molecule B is 4-chlorophenol or parachlorophenol. So para is the common name. Molecule C is 1,2,3 benzene triol. So नीचे It is वाला जितना commonly भी लिखा known हुआ है as सारा common name pyrogallol. है. Pyrogallol. So is the common name. Ethers are a class of organic molecules that contain a bridging oxygen between 2 carbon-containing groups. The carbon groups may be either aliphatic or aromatic. Ethers can also be thought of as a substituted alkane with an alkoxy or aryloxy group. Ethers can be classified in several ways. Simple or symmetrical ethers have 2 identical carbon groups on either side of the oxygen. तो आज यहीं तक रहने देते हैं सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे. तो वेट फॉर अटेंडेंस. टाइम इज ओवर फॉर द सेशन.